जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुकराना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुकराना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना 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 मेरे गुरु पास, शुकराना 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 मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी तुहाडा भी शुकराना। संगत जी गुरु जी सत्संग करवा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं तौर देंगे है कि सत्संग करया कर, शुकराना सत्संग नहीं करता तो गुरु जी देखो मैं गुरु जी के कोल ही बैठ के सत्संग करने की कोशिश कर रहा पर नर्वस हो रहे हैं। गुरु जी ने कहा है गुरु जी जो तुसी बुलवाना है वो तुसी खुद ही बुलवाओगे, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना मेरे गुरु पास, शुकराना 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 मेरे गुरु जी, शुकराना 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 गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी, शुकराना गुरु। जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। गुरु जी मैसेज देंगे है पुत्र मेरी बात सुन, कभी किसी को किसी नू कुछ नहीं कहना, अपना दिल का हाल मेरे नाल कर, मैनू सुना। क्योंकि लोगों ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, अपनी मेरे नाल गल शेयर करिया कर। मैं तेरे को बैठा है, किस वास्ते बैठा है? इस वास्ते कि मैनू कोई अपने दिल के दुखड़े सुना। तू मेरा कमला पुत्र है, तू इन्हां चीज़ों वाल ध्यान ना दे, लोग की कहते हैं की करते हैं। तू सिर्फ सिमरन वाल ध्यान दे। जिन्ना सिमरन करेगा, जिन्ना तू पाठ करेगा, मंत्र जाप करेगा, उन्ना ही तेरा कल्याण होएगा। ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ
ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਛ ਮਨ ਮਟਾਓ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਆਇਆ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਹੀਓ ਬਸ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ वो तबाह हो जाता है। जो रिश्ता बचाने के लिए रोज टूटता है, रोज झुकता है, गिड़गिड़ाता है और फिर बाद में अंत में बिखर जाता है। गुरु जी देखो कितनियां प्यारियां गल्लां समझाते हैं। कहते जरूरी नहीं है हर रिश्ता निभ जाए, ते जेड़ा रिश्ता निभदा उन्होंने निभाओ, जेड़ा नहीं निभदा उन्हें छड्ड दिओ। तो संगत जी, इन्ना कुछ मन नूं दुख होया कि ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੇ ਫਿੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਛੱਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਖਾਰਸ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀ। ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਬਣ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜੋੜਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜਾਂਗਾ ਖੁਦ ਜੋੜਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਤਸੰਗ।
अगले सत्संग की तैयारी करांगा। हुण मैं इत्थे अपने सत्संग नूं स्टॉप करके मंत्र जाप शुरू करना है गुरु जी का। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, मेरे नाल तुसीं भी मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी इन्ने क प्यारे है, इन्ने क प्यारे है कि हर चीज़ हर किसी का ख्याल रखते हैं। संगत जी, गुरु जी दे कोलों मंगन की कोशिश ना करो। जिन्ना भी हो सके मन गुरु जी ने मनना शुरू करो। गुरु जी मंगन तो बगैर ही इन्ना कुछ देंदे है कि तुसी झोलियां भरी आउणगे तुहाडियां। अगर बिना मंगे रहोगे, मनते रहोगे तो तुहानूं बहुत झोलियां भरदे है गुरु जी। मैनूं भी देख लो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आउण दिंदे। मैं कदी नहीं मंगदा, इसे करके ही नहीं मंगदा कि गुरु जी कहते जिन्ना मंगोगे वो तुहानूं देना तो मैं है ही है, पर उन्ना क उसे दायरे विच रहेगा, मिलेगा। तो जे अगर बिना मंगे मिलोगे, मंगोगे, मंगण की कोशिश नहीं करोगे, मन्नी जाओगे, तो तुहानूं वो मिलेगा जिहड़ा कि बेहतर तो बेहतरीन करांगा। शुकराना मेरे गुरु संगत जी, गुरु जी बेहतर तो बेहतरीन करते हैं। इस करके गुरु जी को मंगना बंद कर दो, मंगो ना, मनो गुरु जी नूं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਨ। आंटी भी बड़े प्यार नाल सत्संग शेयर करते हैं। आंटी ने भी ब्लैसिंग करन, आंटी के परिवार में भी ब्लैसिंग करन। गुरु जी सारे ते कृपा करन। शुकराना मेरे गुरु पाया, शुकराना गुरु जी महाराज जी का, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटान शुक्राना। मैं अपने गुरु महाराज जी आपके चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग से स्वीकार करें। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के जल प्रसाद में की तो महिमा का क्या कहने, चंदन तिलक के भी क्या कहने। जो गुरु महाराज जी ने हमें इतनी, सभी संगत को इतनी अच्छी मेडिसिन दी है, उसके तो अद्भुत लीलाएं हैं। संगत जी, मेरे बेटे का कॉलेज में एक फ्रेंड है, वो मतलब वैसे बहुत अच्छा है नेचर वाइज, थोड़ा सा अग्रेसिव भी है और वो ड्रिंक वगैरह भी कर लेता था कभी कभी। बेटे को पता था तो मैंने बोला उससे दूर आकर बेटा, पर बेटा बोलता कि मम्मा वैसे नेचर वाइज बहुत अच्छा है। तो गुरु संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो उसने अब ड्रिंक बिल्कुल छोड़ दी थी, 4 महीने हो गए हैं। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मम्मा वो नहीं करता। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, क्या वो बोलता है कि जब से तेरी दोस्ती मिली है यार, पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता इन गंदी चीज़ों की तरफ जाने का। तो मैंने इससे पूछा कि क्या वो तेरी बोतल से जल प्रसाद लेता था? कह रहा हाँ मम्मा, कभी कभी पी लेता था। तो देखा संगत जी, हमारे गुरु महाराज जी कितनी कृपा करते हैं। ये जो जो इनसे जुड़ता है, जो भी कोई जल प्रसाद पीता है, तो गुरु महाराज जी सभी पे कृपा करते हैं। शुक्राना गुरु जी, उस बच्चे की गंदी आदतें छुड़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छा बच्चा बना दिया आपने उसको। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। वो स्मोकिंग करता है, उसकी ये आदत भी छुड़ा दीजिए गुरु पिता। मुझे पता है आप ये काम करेंगे। शुक्राना गुरु जी। और गुरु महाराज जी ने जैसे कि मेरी दुकान सॉरी संगत जी, दुकान का काम भी शुरू हो गया, चल पड़ी है। गुरु महाराज जी को पता है कि कोई आंटी आई थी, तो वो भाई 2300 का सामान मेरी दुकान से लिया, फटाफट उसने ऑनलाइन करके दिखाया 1600। वो नहीं हुआ। बहुत मतलब गुरु जी पिता जानते हैं, वो बोलती है आ जाएंगे। कोई जुपिटर ऐप थी उससे किया है, वो नहीं आए हमारे पास, और हम उसको जानते भी नहीं हैं। कोई रेंट पे रहते हैं किसी के, तो घर घर तो हमें पता चल चुका है। बस गुरु पिताजी आप पर छोड़ा हुआ है, क्योंकि जब वो मेरी शॉप पे आई थी गुरु जी, उसमें से मुझे गुलाबों की खुशबू आ रही थी। तो मुझे उसको देख के ये नहीं लगा कि ये कोई ठग है।
मतलब उस पे मैं ट्रस्ट कर रही थी। तो गुरु पिताजी मुझे थोड़ा चौकस कीजिए कि मैं किसी को भी ऐसे कपड़ा सामान ना दूँ। तो 600 रुपये तो उसने ऑनलाइन दे दिए, वो तो आ गए थे, लेकिन वो 1600 नहीं आए। थोड़ी चालबाजियाँ भी लग रही थी, पता नहीं गुरु पिता, उस पर यहाँ विश्वास करने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लगा था कि इस पर विश्वास ही किया जाए। तो गुरु महाराज जी, मैं आज उसके घर जाऊँगी, तो आप बस पैसे दिलवा दीजिएगा गुरु बेटा, क्योंकि आपको तो पता है कि आपकी बेटी को पैसे की कितनी ज़रूरत है और कितनी मेहनत है। मेरे पति की कितनी मेहनत की कमाई से सामान आता है, गुरु पिताजी सभी जानते हैं। खैर गुरु जी को छोड़ा हुआ है तो गुरु जी सब काम करेंगे, और बेटा भी पेपर दे लेंगे। गुरु पिताजी, आप उसके अंग संग रहिए गुरु महाराज जी, उसके सारे एग्ज़ाम्स को टॉप 1 क्लियर कराइए। वो तो आप पर मुझे पूरा विश्वास है गुरु पिता कि आप ये काम करेंगे। और गुरु जी, एक बेटी के लिए अरदास है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल, ज़िद्दी है, अड़ियल सी है। मेरी वो बेटी मुझे जो बहुत प्यार करती थी गुरु पिता, मुझे वो लौटा दीजिए। मेरा बहुत मन करता है अपनी बेटी से बातें करने का, प्यार करने का, लेकिन गुरु पिताजी जानते हैं कि वो बात ही नहीं करके राजी है, बोलती नहीं है, गुस्सैल है, ज़िद्दी सी है। मुझे जैसे ऐसा लगता है कुछ समझते ही नहीं है। गुरु पिताजी प्लीज़, मेरा बहुत मन करता है, मुझे पता है गुरु जी कि आप मेरी ये ज़िद भी पूरी करेंगे। तो मेरी बेटी को मेरी झोली में अच्छा करके डाल दीजिए। बाकी का शुक्राना मैं बाद में शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी वेस्ट बंगाल से हूँ। ये मेरा शांति वाला शुक्राना सत्संग है आंटी जी। आज बुधवार है, गणेश जी का दिन है। तो पहले मैं गणेश जी के चरणों में भी शतकोटि प्रणाम जानती हूँ। हे मेरे बाबा, हे गणपति बाबा, मुझे पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटा, तेरे काम बनाने के लिए मुझे हज़ारों जगह परिवर्तन करना पड़ता है। कोई लोगों को की बुद्धि बदलनी पड़ती है और तुझसे शुक्राना भी नहीं किया जाता। शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, और जो देने वाले हो उसके लिए शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें एक आंटी ने यही बोल रही थी कि उनको गुरुजी ने बोला है कि गणेश जी उनसे नाराज़ है। ये मैसेज भी मुझे कुछ दिन पहले भी आया था। तब मैंने सत्संग में शुक्राना सत्संग करके गुरु गणेश जी से माफ़ी मांगा था। तब फिर से गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनाया। तो आज बुधवार के दिन, गणेश जी के दिन, मैं गणपति पापा से माफ़ी मांगने आई हूँ। हे गणपति पापा, मुझे जाने अनजाने में मुझसे जो बड़ी बड़ी गलती हुई है ना, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि ना तब मैं इतना अनजान था, मुझे तब कोई पता नहीं था। तब ना संगीत जी, मेरी शादी से पहले हम लोग रेंट के घर में रहते थे। तब घर में बहुत चूहा था। तो मेरे पापा ने चूहा जो पकड़ने के लिए जो यंत्र होता है ना, खाँचा होता है, वो उसमें पकड़ा था और पकड़ के बाहर छोड़ के आए थे संगीत जी। तो हम लोग भी थे इसमें शामिल। तो हे गणपति बाबा, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। अगर मुझसे कोई भूल हुई तो, मुझसे पाप हुआ तो, पाप के लिए मैं सभी संगत के सामने कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गणपति जी, आप मुझे माफ़ कर देना। हे गुरु जी, आप भी गणेश जी को बोलना मुझे माफ़ करने के लिए। मैंने आज भी कान पकड़े गणेश जी से माफ़ी मांगना है। जब मैं पूजा कर रही थी तब भी मैं गणेश जी से माफ़ी मांगा है। हे गणपति पापा, आप मुझे माफ़ कर देना। I am sorry, please forgive me, I thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, I thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, I thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, I thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, I thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, I thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, I thank you and I love you. गणपति बापा, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी ने उस सत्संग में आंटी से मुख से और एक बात भी सुनाया कि आंटी ने बोल रही थी
कि आंटी को 2 लड़की थी और एक लड़की होने वाला था, तो आंटी ने अबॉर्शन किया था। इसके लिए गुरुजी ने उनको माफ़ी माँगने के लिए बोला था। तो इस रिलेटेड भी गुरुजी ने पहले भी मुझे सत्संग सुनाया आंटी जी। तो ये पाप भी मुझसे हुआ है, क्योंकि मैंने तभी मैं इतना जानती नहीं थी। मैं अनजाने में ऐसा किया है गुरुजी। मैंने तो ऑपरेशन नहीं किया था, लेकिन हाँ मैंने मेडिसिन लिया था। तो मैं वो शुरू में ही तब मैं तैयारी में रेडी नहीं थी। तो मैं मुझसे भी ये पाप हुआ है। जो नन्ही जान जो आने वाला था वह थी। प्लीज़ गुरुजी आप उससे मोक्ष दीजिए, उस आत्मा को शांति दीजिए गुरुजी। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी लाइफ में जो भी परेशानियाँ हो रही है ना, उसकी वजह से हो रही है। प्लीज़ गुरुपा आप मेरे पूरे कर्म के लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और कभी भी ऐसा पाप मुझसे नहीं होगा। आप उस नन्ही जान को मोक्ष प्राप्त कर दीजिए, उस आत्मा को शांति दीजिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, और जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका मैसेज फिर से मेरे आई है कि मेरी बेटी वो तुझे बार बार धोखा दे रही है, और तू फिर भी उसके पीछे जा रही है। अभी भी वक्त है, रुक जा, वो तेरे लिए सही नहीं है। अभी मेरा हुक्म मान और शुक्राना कर। तो मैं अभी शांति वाले में शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जानती हूँ मेरे लाइफ में जो इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, जो नेगेटिव लोग ठीक नहीं, आप सब लोगों को मेरे लाइफ से निकाला है। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन गुरुपा मेरे एक डाउट है, क्योंकि मैं ना बहुत कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। आप मुझे ये मैसेज दे रही हो क्योंकि दूर रहने के लिए मेरे पति से, और फिर से आप मेरे पति रिलेटेड ही सत्संग सुनाती हो कि तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, उसका एक्सीडेंट का संभावना है, उसका बहुत बड़ी बीमारी है। तो सत्संग सुन, उसका कष्ट काटा, तेरे पति जल्दी तेरे पास आएगा। उसके ऊपर वशीकरण किया गया है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, तेरे सास ने किया है। तो ये सब क्या है गुरुजी? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में। मैं कौन से रास्ते में हटूँ? क्योंकि आपने बोला है एक बार बोलते हो जो उसे हट जा, अब दूसरी बारी आप मुझे पति रिलेटेड सत्संग सुनाते हो गुरुजी। मैंने तो ठीक कर लिया था ना, मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, लेकिन आपने मेरा दिमाग में डाला, नहीं तो उससे माफ़ कर दे, मैं उसे ठीक करके तेरे पास भेजूँगी। वो गलत नहीं है, तेरे जो सास है वो ननद है, वो लोग उसके ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया है, उसका बुद्धि बांध दिया है, उसके ऊपर वशीकरण किया है। तो प्लीज़ गुरुपा आप मुझे क्लियर मैसेज दो ना, मैं क्या करूँ? क्योंकि मेरे ऊपर जो उन लोगों ने जो डिवोर्स का केस जो दिया है वो भी झूला हुआ है, और मेरे इनकम में बढ़कर भी नहीं हो रहा है। मैं अभी इस हालत में हूँ ना, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। प्लीज़ इस हालत से मुझे निकालिए गुरुजी। मैं दो राह पर नहीं चल सकती गुरुजी। प्लीज़ मुझे एक राह आप कर दीजिए गुरुपा। आपका बेटी का लाइफ आपका हाथ में है गुरुजी, आपकी बेटी को आपको ही देखना है गुरुजी, क्योंकि आपको बेटी को आपको संभालना है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक छोटा-सा शुक्राना और है। 2 दिन पहले ना उस सैटरडे को जो सैटरडे चला गया ना, उस सैटरडे को मैं ना मैं मेरी बेटी को लेने एक मेरे बेटी का क्लास हो रहा था कुछ दिन पहले। तो एक पार्क में, मैं स्कूल में जो एक पार्क में होता है ना, वो मैं बैठी थी। तब मेरे पास टाइम था, मेरी बेटी का क्लास हो रहा था, तो मैं उस पार्क में बैठे मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी। तभी मैंने देखा सत्संग जब सुन रही थी पार्क में, तभी कोई नहीं था। तभी पार्क जस्ट तभी कोई नहीं आया था, मैं सिर्फ एक ही बैठी थी। लेकिन तब मैं कुछ देर बाद एक लड़की आके मेरे पास बैठा। फिर मैंने देखा, मैं जब सत्संग सुनी थी मैंने देखा एक डॉगी ना
वो शायद उसको बहुत ज़ोर से भूख लगा था। वो नाक से ना सूख-सूख के ना पूरा नाक से सूख रहा था। वो शायद वो खाना ढूँढ रहा था। पूरा जो ग्राउंड है ना, एरिया है, माठ है ना, वो पूरा राउंड वो ऐसे ही कर रहा था। मुझे देख के ना बहुत बुरा लगा संगत जी, क्योंकि मेरे पास ना उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। क्योंकि जब मैं ओह सॉरी संगीत जी, उस दिन संडे था, क्योंकि संडे को सुबह मैं जब क्लास में जाती हूँ ना, मेरे तभी जो उस एबेकस सेंटर के पास जब मैं बैठी रहती हूँ ना, उसमें 2 डॉग रहता है, तो उसे मैं जब बिस्कुट का पैकेट है ना, मेरी बिस्कुट मैं देती हूँ संगीत जी, लेकिन तभी मेरे पास नहीं था। मुझे देख के ना इतना बुरा लगा ना, क्योंकि मैं जानती हूँ हर जीव के अंदर ही मेरे गुरुजी का वास होता है। तो ना बहुत बुरा लग रहा था। मैं देख रही थी कि वो बार-बार नाक से सूख रहा है और पूरा खाना ढूँढ रहा है, इधर-उधर पूरा माठ को ऐसे ही कर रहा था। मुझे देख के बहुत बुरा लगा संगत जी। मैं तो सत्संग सुन रही थी, मुझे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। शायद गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि बेटा देख तेरे बाउंड्री वो मैं जो पार्क में बैठी थी ना, वो 4-5 जो बाउंड्री से घिरा हुआ था संगत जी, लेकिन ना वो नेट लगा था बाउंड्री की, छोटा-सा था। बाउंड्री के साइड और रोड था, रोड के साइड एक दुकान था संगत जी। शायद गुरुजी ने मेरे दिमाग में ये बात डाला कि बेटा तू जाके वो दुकानदार से पूछ और कुछ सामान ले डॉगी के लिए। फिर मैंने ना सत्संग सुन के उठा, सुन रही थी, तो मैंने उठ के ना मैं बाउंड्री के पास आई। आके ना मैं चिल्ला के वो दुकानदार को पूछी, भैया आपके पास क्या मेरी बिस्कुट का पैकेट है? तो उन्होंने बोला हाँ है। तो मैंने बोला आके मेरे बाउंड्री से ऊपर से मुझे दे देना। तो मैंने उनको 10 रुपीज़ दिया। फिर उन्होंने मुझे एक पैकेट दिया संगत जी। फिर मैंने आके ना मैंने देखा डॉगी नहीं है। फिर मेरा मन ना बहुत खराब हो गया। फिर मैंने इधर-उधर देखा, तो देखा डॉगी कोने में ढूँढ रहा था संगत जी। फिर मैंने उनको उस डॉगी को बुलाया, फिर उसको पैकेट बिस्किट का पैकेट दिया। फिर मैंने देखा वो बहुत आराम से खाया संगत जी। तो ऐसे गुरुजी ना मेरे दिमाग में ऐसे बात डाला संगत जी। तो ये भी एक शुक्राना सत्संग है, क्योंकि मैं जानती हूँ हर जीव के अंदर मेरे गुरुजी का वास होता है संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। उस दिन आपके मैंने मन में थॉट डालने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हर फल का शुक्राना, हर सांस का शुक्र, ऐसे आप सब जीव का ऐसे ख्याल रखना गुरुपा। और वो अबला जीव होता है ना, वो कुछ भी बोल नहीं पाता है, हम सबको इसको देखना होता है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ऐसे मेरे हाथ से ऐसे सेवा करते रहना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग यहीं तक आंटी जी। मैं मंत्र जप करूँगी गुरुजी का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और एक बात संगत जी, गुरुजी ने बोला है, गुरुजी ने मेरी बहन का भी बहुत बड़ा कष्ट आया था, उनको कष्ट काटा है छोटे में। गुरुजी ने मेरी बहन को भी ब्लेस किया है, क्योंकि मेरी बहन भी अभी प्रेग्नेंट है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी आप उस मेरी बहन को भी बहुत-बहुत ब्लेस करना, उसके बच्चे को भी ब्लेस करना, उसकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए गुरुजी। फिर हम लोग उसके बच्चे को लेके आपके बड़े मंदिर आ सके गुरुजी, ऐसे कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बहन को न्यू लाइफ देने के लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और आप जैसे मेरी और मेरी बच्ची को रक्षा करते आए हो ना, मैं जानती हूँ आप फ्यूचर में ऐसे रक्षा करोगे। आगे भी आपका बेटे का हाथ और ऐसे पकड़ के रखना है गुरुपा। मेरे पूरे फैमिली की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करती है ना, उनको भी आप भर-भर के ब्लेसिंग देना, उनके चैनल के भी ब्लेस करना, क्योंकि वो आंटी जी बहुत अच्छे काज कर रही है। और हम लोग जो सत्संग शेयर करते हैं ना, और आंटी जी सत्संग शेयर करती है, अपना सेवा बहुत अच्छे से कर रही है। आंटी जी को भी भर-भर के ब्लेसिंग देना, पूरा संगत परिवार को ब्लेस करना, सभी बच्चे को ब्लेस करना, सभी को अच्छा सेहत देना गुरुपा। और आप भी अच्छा ख्याल रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी वेस्ट बंगाल से हूँ। ये मेरा शांता वाला शुक्राना सत्संग है आंटी जी। आज बुधवार है, गणेश जी का दिन है। तो पहले मैं गणेश जी के चरणों में भी शतकोटि प्रणाम जानती हूँ। हे मेरे बाबा, हे गणपति बाबा, मुझे पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी,
संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा तेरे काम बनाने के लिए मुझे हज़ारों जगह परिवर्तन करना पड़ता है। कोई लोगों को की बुद्धि बदलनी पड़ती है और तुझसे शुक्राना भी नहीं किया जाता, शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना और जो देने वाले हो उसके लिए शुक्राना और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें एक आंटी ने यही बोल रही थी कि उनको गुरुजी ने बोला है कि गणेश जी उनसे नाराज़ है। ये मैसेज भी मुझे कुछ दिन पहले भी आया था, तब मैंने सत्संग में शुक्राना सत्संग करके गुरु गणेश जी से माफ़ी मांगा था। तब फिर से गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया। तो आज बुधवार के दिन, गणेश जी के दिन, मैं गणपति पापा से माफ़ी मांगने आई हूँ। हे गणपति पापा, मुझे अनजाने जाने अनजाने में मुझसे जो बड़ी बड़ी गलती हुई है ना, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि ना तब मैं इतना अनजान था, मुझे तब कोई पता नहीं था। तब ना संगत जी, मेरी शादी से पहले हम लोग रेंट के घर में रहते थे, तब घर में बहुत चूहा था। तो मेरे पापा ने चूहा जो पकड़ने के लिए जो यंत्र होता है ना, खाँचा होता है, वो उसमें पकड़ा था और पकड़ के बाहर छोड़ के आई थी संगत जी। तो हम लोग भी थे इसमें शामिल। तो हे गणपति बाबा, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। अगर मुझसे कोई भूल हुई तो, मुझसे पाप हुआ तो पाप के लिए मैं सभी संगत के सामने कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गणपति जी, आप मुझे माफ़ कर देना। हे गुरु जी, आप भी गणेश जी को बोलना मुझे माफ़ करने के लिए। मैंने आज भी कान पकड़े गणेश जी से माफ़ी मांगना है। जब मैं पूजा कर रही थी तब भी मैं गणेश जी से माफ़ी मांगा है। हे गणपति पापा, आप मुझे माफ़ कर देना। I am sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you and I love you. गणपति बापा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने उस सत्संग में आंटी से मुख से और एक बात भी सुनाया कि आंटी ने बोल रही थी कि आंटी को 2 लड़की थी और एक लड़की होने वाला था, तो आंटी ने अबॉर्शन किया था। इसके लिए गुरुजी ने उनको माफ़ी मांगने के लिए बोला था। तो इस रिलेटेड भी गुरुजी ने पहले भी मुझे सत्संग सुनाया आंटी जी। तो ये पाप भी मुझसे हुआ है, क्योंकि मैंने तभी मैं इतना जानती नहीं थी। मैं अनजाने में ऐसा किया है गुरुजी। मैंने तो अबॉर्शन नहीं किया था, लेकिन हाँ, मैंने मेडिसिन लिया था। तो मैं वो शुरू में ही, तब मैं तैयारी में रेडी नहीं थी। तो मैं मुझसे भी ये पाप हुआ है। जो नन्ही जान जो आने वाला था वह थी। प्लीज़ गुरुजी, आप उससे मोक्ष दीजिए, उस आत्मा को शांति दीजिए गुरुजी। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी लाइफ में जो भी परेशानियाँ हो रही है ना, उसकी वजह से हो रही है। प्लीज़ गुरुपा, आप मेरे बुरे कर्मों के लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ और कभी भी ऐसा पाप मुझसे नहीं होगा। आप उस नन्ही जान को मोक्ष प्राप्त कर दीजिए, उस आत्मा को शांति दीजिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना और जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका मैसेज फिर से मेरे आई है कि मेरी बेटी वो तुझे बार बार धोखा दे रही है और तू फिर भी उसके पीछे जा रही है। अभी भी वक्त है, रुक जा, वो तेरे लिए सही नहीं है। अभी मेरा हुक्म मान और शुक्राना कर। तो मैं अभी शांति वाले में शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जानती हूँ मेरे लाइफ में जो इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, जो नेगेटिव लोग ठीक ने आप सब लोगों को मेरे लाइफ से निकाला है। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन गुरुपा, मेरे एक डाउट है, क्योंकि मैं ना बहुत कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। आप मुझे ये मैसेज दे रही हो क्योंकि दूर रहने के लिए मेरे पति से, और फिर से आप मेरे पति रिलेटेड ही सत्संग सुनाती हो कि तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, उसका एक्सीडेंट का सामना है, उसका बहुत बड़ा बीमारी है। तो सत्संग सुन, उसका कष्ट काटा, तेरे पति जल्दी तेरे पास आएगा,
उसके ऊपर वशीकरण किया गया है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, तेरे सास ने किया है। तो ये सब क्या है गुरुजी? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में, मैं कौन से रास्ते में हटूँ? क्योंकि आपने बोला है एक बार बोलते हो जो उसे हट जा, अब दूसरी बारी आप मुझे पति रिलेटेड सत्संग सुनाते हो गुरुजी। मैंने तो ठीक कर लिया था ना, मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, लेकिन आपने मेरा मेरा दिमाग में डाला, नहीं तो उससे माफ़ कर दे, मैं उसे ठीक करके तेरे पास भेजूँगी। वो गलत नहीं है, तेरे जो सास है वो ननद है, वो लोग उसके ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया है, उसका बुद्धि बांध दिया है, उसके ऊपर वशीकरण किया है। तो प्लीज़ गुरुपा आप मुझे क्लियर मैसेज दो ना, मैं क्या करूँ? क्योंकि मेरे ऊपर जो उन लोगों ने जो डिवोर्स का केस जो दिया है वो भी झूला हुआ है, और मेरे इनकम में बढ़त भी नहीं हो रहा है। मैं अभी इस हालत में हूँ ना, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, प्लीज़ इस हालत से मुझे निकालिए गुरुजी। मैं दो राह पर नहीं चल सकती गुरुजी, प्लीज़ मुझे एक राह आप कर दीजिए गुरुपा। आपका बेटी का लाइफ आपका हाथ में है गुरुजी, आपकी बेटी को आपको ही देखना है गुरुजी, क्योंकि आपको बेटी को आपको संभालना है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए शुक्राना, आज जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक छोटा-सा शुक्राना और है। 2 दिन पहले ना उस सैटरडे को जो सैटरडे चला गया ना, उस सैटरडे को मैं ना मैं मेरी बेटी को लेने एक मेरे बेटी का क्लास हो रहा था कुछ दिन पहले, तो एक पार्क में मैं स्कूल में जो एक पार्क में होता है ना, वो मैं बैठी थी। तब मेरे पास टाइम था, मेरी बेटी का क्लास हो रहा था, तो मैं उस पार्क में बैठे मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी। तभी मैंने देखा सत्संग जब सुन रही थी पार्क में, तभी कोई नहीं था। तभी पार्क जस्ट तभी कोई नहीं आया था, मैं सिर्फ एक ही बैठी थी। लेकिन तब मैं कुछ देर बाद एक लड़की आके मेरे पास बैठा। फिर मैंने देखा, मैं जब सत्संग सुनी थी मैंने देखा एक डॉगी ना, ओ शायद उसको बहुत ज़ोर से भूख लगा था। वो नाक से ना सूख-सूख के ना पूरा नाक से सूख रहा था। वो शायद वो खाना ढूँढ रहा था। पूरा जो ग्राउंड है ना, एरिया है, माठ है ना, वो पूरा राउंड वो ऐसे ही कर रहा था। मुझे देख के ना बहुत बुरा लगा संगत जी, क्योंकि मेरे पास ना उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। क्योंकि जब मैं ओह सॉरी संगत जी, उस दिन संडे था, क्योंकि संडे को सुबह मैं जब क्लास में जाती हूँ ना, मैं तभी जो उस एबेकस सेंटर के पास जब मैं बैठी रहती हूँ ना, उसमें 2 डॉग रहता है, तो उसे मैं जब बिस्कुट का पैकेट है ना, मेरी बिस्कुट मैं देती हूँ संगत जी, लेकिन तभी मेरे पास नहीं था। मुझे देख के ना इतना बुरा लगा ना, क्योंकि मैं जानती हूँ हर जीव के अंदर ही मेरे गुरुजी का वास होता है। तो ना बहुत बुरा लग रहा था, मैं देख रही थी कि वो बार-बार नाक से सूख रहा है और पूरा खाना ढूँढ रहा है, इधर-उधर पूरा माठ को ऐसे कर रहा था। मुझे देख के बहुत बुरा लगा संगत जी, मैं तो सत्संग सुन रही थी, मुझे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। शायद गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि बेटा देख तेरे बाउंड्री वो मैं जो पार्क में बैठी थी ना, वो 4-5 जो बाउंड्री से घिरा हुआ था संगत जी, लेकिन ना वो नेट लगा था बाउंड्री की, छोटा-सा था। बाउंड्री के साइड और रोड था, रोड के साइड एक दुकान था संगत जी। शायद गुरुजी ने मेरे दिमाग में ये बात डाला कि बेटा तू जाके वो दुकानदार से पूछ और कुछ सामान ले डॉगी के लिए। फिर मैंने ना सत्संग सुन के उठा, सुन रही थी, तो मैंने उठ के ना मैं बाउंड्री के पास आई। आके ना मैं चिल्ला के वो दुकानदार को पूछी, भैया आपके पास क्या मेरी बिस्कुट का पैकेट है? तो उन्होंने बोला हाँ है। तो मैंने बोला आप आके मेरे बाउंड्री से ऊपर से मुझे दे देना। तो मैंने उनको 10 रुपीज़ दिया, फिर उन्होंने मुझे एक पैकेट दिया संगत जी। फिर मैंने आके ना मैंने देखा डॉगी नहीं है, फिर मेरा मन ना बहुत ख़राब हो गया। फिर मैंने इधर-उधर देखा, तो देखा डॉगी कोने में ढूँढ रहा था संगत जी। फिर मैंने उनको उस डॉगी को बुलाया, फिर उसको पैकेट बिस्किट का पैकेट दिया। फिर मैंने देखा वो बहुत आराम से खाया संगत जी। तो ऐसे गुरुजी ना मेरे दिमाग में ऐसे बात डाला संगत जी। तो ये भी एक शुक्राना सत्संग है, क्योंकि मैं जानती हूँ हर जीव के अंदर मेरे गुरुजी का वास होता है संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। उस दिन आपके मैंने मन में थॉट डालने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना, ऐसे
ऐसे आप सब जीव का ऐसे ख्याल रखना गुरुपा। और वो वाला जीव होता है ना, वो कुछ भी बोल नहीं पाता है, हम सबको इसको देखना होता है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ऐसे मेरे हाथ से ऐसे सेवा करते रहना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग यहीं तक आंटी जी। मैं मंत्र जप करूंगी गुरुजी का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और एक बात संगत जी, गुरुजी ने बोला है, गुरुजी ने मेरे बहन का भी बहुत बड़ा कष्ट आया था, उनको कष्ट काटा है छोटे में। गुरुजी ने मेरे बहन को भी ब्लेस किया है, क्योंकि मेरी बहन भी अभी प्रेग्नेंट है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी आप उस मेरी बहन को भी बहुत बहुत ब्लेस करना, उसके बच्चे को भी ब्लेस करना, उसकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए गुरुजी, फिर हम लोग उसके बच्चे के लेके आपके बड़े मंदिर आ सके गुरुजी, ऐसे कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बहन को न्यू लाइफ देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आप जैसे मेरे और मेरी बच्ची को रक्षा करते आए हो ना, मैं जानती हूँ आप फ्यूचर में भी ऐसे रक्षा करोगे, आगे भी आपका बेटे का हाथ और ऐसे पकड़ के रखना है गुरुपा। मेरे पूरे फैमिली की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करती है ना, उनको भी आप भर भर के ब्लेसिंग देना, उनके चैनल के भी ब्लेस करना, क्योंकि वो आंटी जी बहुत अच्छे काज कर रही है। और हम लोग जो सत्संग शेयर करते हैं ना, और आंटी जी सत्संग शेयर करती है, अपना सेवा बहुत अच्छे से कर रही है। आंटी जी को भी भर भर के ब्लेसिंग देना, पूरा संगत परिवार को ब्लेस करना, सभी बच्चे को ब्लेस करना, सभी को अच्छा सेहत देना गुरुपा। और आप भी अच्छा ख्याल रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी मैंने कुछ देर पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था। कुछ शुक्राना मेरा रह गया संगत जी, जो जस्ट अभी गुरुजी ने मुझे याद दिलाया और बोला जो शुक्राना तेरा रह गया उसे भी कर दे, पूरा शुक्राना कर। संगत जी, कल रात को 2:30 बजे के करीब मुझे अपने गेट पे कुछ आवाज़ लगी, जैसे कोई गेट के पास है। संगत जी, मेरी सास गुरुजी सत्संग में सुना चुके हैं कि रात को तेरे सोने के बाद कोई आता है तंत्र मंत्र करने, तो मुझे पता है मेरी सास आती है। पर संगत जी, कल ना अचानक से मेरी आँख खुली हुई थी, मतलब मेरे को नींद खुल चुकी थी जब ये आई है। तो संगत जी, मेरे शरीर में इतनी तकलीफ़ थी और मुझे इतना भय लग रहा था कि मैं उठ के जाके देख नहीं पा रही थी संगत जी। पर मेरी सास का हाथ लड़ा, पता नहीं क्या लड़ा, मुझे नहीं पता संगत जी। वो जो फर्स्ट फ्लोर है ना, उसका गेट एल्युमिनियम का है संगत जी, तो उसमें खट से कोई आवाज़ छूता है तो वो आवाज़ आ जाती है संगत जी। उसका हाथ छू गया होगा संगत जी, नहीं पता। वो आवाज़ संगत जी मेरे रूम तक आ गई। मैंने सुना संगत जी, और सत्संग पहले ही गुरुजी बता चुके थे संगत जी, और बहुत सारी चीज़ें वो ऑलरेडी कर चुकी है इससे पहले भी। तो संगत जी, मैं उठ तो नहीं पाई और शरीर मेरा उठ भी नहीं पा रहा था संगत जी। पूरी हड्डियों में इतनी दर्द थी, रीढ़ की हड्डी से लेके पूरे शरीर में, हाथ पैर में। लेकिन संगत जी, डर भी मुझे लग रहा था। तो संगत जी, मॉर्निंग में गुरुजी ने मुझे सुबह जल्दी उठाया आज, और मुझसे पूरे घर की सफाई, जो थोड़ा सा मैं उठती हूँ, हस्बैंड को नाश्ता पानी सब करके अपना सफाई करती हूँ, लेकिन नहीं, आज गुरुजी ने मुझे पहले घर की सफाई करवाई, झाड़ू लगवाया संगत जी हर जगह मेरे हस्बैंड अंकल के उठने से पहले, ताकि मेरे हस्बैंड अंकल उठे ना उठ पाएँ। और शायद हो सकता है संगत जी, वो जो भी चीज़ करके गई थी वो मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर के लिए करके गई होगी, ताकि वो अब मेरे हस्बैंड अंकल उठें और जैसे गेट खोल के बाहर पाँव रखें तो उन पे वो चीज़ असर करे, ऐसा कुछ उसने सोचा होगा संगत जी, मुझे नहीं पता। क्योंकि संगत जी, सुबह मेरे हस्बैंड अंकल को सबसे पहले उठते हैं, सबसे पहले दूध लेके आते हैं दुकान से संगत जी, तो उसे पता था। तो उन गुरुजी ने सबसे पहले मुझे उठा के पहले ये काम करवाया। मैंने सारा झाड़ू लगाया संगत जी, पोछे में गुरुजी ने नमक डलवाया, हल्दी डलवाई और अपना जल प्रसाद डलवाया, और उससे पूरे घर का पोछा लगवाया संगत जी। उसके बाद मेरे हस्बैंड उठे और गए, तो जिसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। झाड़ू लग गया था संगत जी, हस्बैंड अंकल के उठने से पहले पोछा भी आधा लग गया था, पर थोड़ा रह गया था संगत जी। ठीक है, अब गुरुजी जाने, लेकिन तब तक फिर मैंने लगा दिया था संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। कोई बहुत बड़ा कष्ट आपने छोटे में काट दिया। देखे ना संगत जी, फिर सुबह फिर से हम लोग कभी चनबन हुई ना, तो फिर से कोई बड़ा कष्ट छोटे में कट गया उपाय करवा के, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो कि मैं सत्संग में शेयर करना भूल गई थी संगत जी। एक और सत्संग है संगत जी, जब कल मैं अपने मायके में थी ना संगत जी,
तो जैसे कि मैंने बोला मायके वाले भी तंत्र करते हैं, तो मेरे मायके के भी मेरी चाची को पता था कि अब रात हो गई है, इसका हस्बैंड इसको लेने आने वाला होगा, ये जाने वाली। और मेरी चाची भी नीचे रहती है संगत जी, और मेरी मदर फर्स्ट फ्लोर पर उनका रूम है, जैसे कि यहाँ मैं रहती हूँ। तो संगत जी मेरी मदर किचन में थी रात को, जैसे कि मैंने बोला वो रोटी पैक कर रही थी मेरे लिए, और नीचे कोई आया संगत जी, उसने दरवाजे के पास कुछ ब्लैक मैजिक किया, कुछ चप्पलों की आवाज़ आई पटकने की, कुछ तंत्र मंत्र, कुछ आवाज़ आई संगत जी। मेरी मम्मी बालकनी पे एकदम से भाग के गई, और संगत जी नीचे की गैलरी से ही बाहर जाने का रास्ता, एंटर होने का रास्ता है। इसे पता था नीचे चाची को मेरी मायके में कि अब मैं अपने जाने वाली हूँ अपने घर ससुराल, मेरे हस्बैंड लेने आने वाले हैं। तो संगत जी उसने कोई तंत्र किया संगत जी। संगत जी मेरी मदर ने देख लिया संगत जी। वो जल्दी से, उसने जैसे देखा मेरी मदर देख गई, मेरी मदर ने खाँसने की आवाज़ आई, जल्दी से अंदर भाग गई संगत जी। तो संगत जी उसके बाद मेरी मदर ने कहा कि तुम थोड़ा साइड से होके निकलना। रास्ता वही था संगत जी, क्या करूँ, बाहर तो निकलना ही था। तो मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेकर घर गई थी। मैं गुरुजी को लेके साथ जाती हूँ अपने, जब भी मायके या कहीं जाती हूँ। तो वापसी में भी मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप ही साथ में था, तो मैं मेरी मंत्र जाप करके पॉकेट स्वरूप के साथ बाहर आई और अपने ससुराल आ गई संगत जी। और उसके बाद आपने देखा ही कि ससुराल में क्या अनबन हुई रात में। कहा ना मैंने, बहुत बड़ा कर छोटे में काटा गुरुजी ने। और संगत जी मायके में एक चीज़ और गुरुजी ने दिखाई कि जैसे ही वो तंत्र मंत्र किया ना मेरी चाची ने नीचे, तो उसके बाद ही संगत जी मैंने देखा कि गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा। मेरे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेकर के टहल रही थी कि अभी मुझे उतरना ही है, तो मैं मंदिर से पॉकेट स्वरूप अपना उठा लेती हूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो मैंने देखा एक छिपकली आई संगत जी, और उसने एक कॉकरोच को गर्दन दबा के मार दिया। संगत जी आप देखोगे छिपकली कॉकरोच खा लेती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया उसने। उस कॉकरोच को, अच्छा खासा कॉकरोच बैठा था, वो छिपकली उसके पास गई और उसने उसके गर्दन पे काटा और उसे नोच के उसे मार दिया। वो फटाक से ज़मीन पे गिर गया संगत जी। मैं उसी वक्त समझ गई कि जैसे इधर इसने तंत्र किया और गुरुजी ने इधर मेरा तुरंत कष्ट काट दिया। कोई जानलेवा कष्ट संकट था संगत जी, कोई जानलेवा ही तंत्र इसने किया था नीचे वाली ने, मेरी चाची ने संगत जी। जब मैं कल रात में मायके में थी और ससुराल आई, तो रात में 2-2 ढाई बजे करीब सास ने किया तंत्र। दोनों ही जगह गुरुजी ने मुझे बचाया और मेरे हस्बैंड अंकल को बचाया। और संगत जी मैं एक चीज़ और बता दूँ, मेरी चाची को जो मायके में, उसको ये भी पता है कि पहले मेरे हस्बैंड घर आते हैं, खाना खाते हैं, मेरी मम्मी जो डिनर बनाती है, उसके बाद ही हम लोग अपने ससुराल लौटते हैं। लेकिन संगत जी कल काफ़ी लेट हो गया था, तो मेरे हस्बैंड अंकल खाना नहीं खाए, वो उन्होंने अपनी शॉप पे ही कुछ मंगवा के खा लिया था। तो संगत जी अच्छी बात है ना, क्योंकि मेरी चाची को पता था कि पहले इसका पति अंदर आएगा। मेरे हस्बैंड पे भी वो तंत्र होता संगत जी, उसके बाद ये जाएगी, दोनों साथ निकलेंगे, दोनों पे तंत्र हो जाता। लेकिन संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा रही, मेरे हस्बैंड का लेट में आया, उसमें भी गुरुजी की अच्छाई थी। लेट में आने भी उन्होंने भेजा कि उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जैसे कि गुरुजी ने कहा है ना कि दिन 2-3 दिन भारी हैं, तो सेकंड डे था कल भारी दिन का संगत जी। तो गुरुजी को पता था, तो मेरे हस्बैंड अंकल बाहर से ही थे, खड़े थे बाइक लेके, और मैं उतरी, मैं एक साइड से निकल गई, जहाँ से चप्पल मारा मैं उधर को क्रॉस करके नहीं गई, मैं थोड़ा साइड से निकल गई, पर रास्ता सेम था संगत जी। तो गुरुजी ने मेरा कष्ट छिपकली के कॉकरोच के माध्यम से अपने ऊपर ले लिया। उस कॉकरोच को जैसे उसने गड़े दबोच के नोचा ना छिपकली ने, उसे खाया नहीं संगत जी, मार के उसको छोड़ दिया, जैसे कि ये लोग तंत्र करने वाले मारना चाहते हो, वैसे वाला संगत जी। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी ने मुझे बचाया, मेरे हस्बैंड अंकल को बचाया तंत्र मंत्र से, और बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा, उस कॉकरोच के रूप में, जीव जंतु के रूप में सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। जब संगत जी मैं कल यहाँ नहीं थी, तो यहाँ भी मेरे दरवाजे के बाद तंत्र किया गया होगा, मुझे मालूम है, जिसका पूरा असर मैंने कहा देखने को मिला मुझे। पर गुरुजी के उपायों ने, गुरुजी के सत्संग ने ही मुझे बहुत बड़े अनहोनी से बचाया है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का संगत जी। ये शुक्राना मैं शेयर करना भूल गई थी अभी मैंने पहले सत्संग में, तो गुरुजी ने तुरंत मुझे मैसेज दिया कि तू फिर से शुक्राना कर, तू आधा शुक्राना तूने शेयर किया है, तो कुछ भूल गई है। हाँ जी गुरुजी महाराज, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। संगत जी मैंने अपना शुक्राना सत्संग यही जो बचा था, ये भी मैंने शेयर कर दिया गुरुजी की आज्ञा से। गुरुजी इसे भी स्वीकार करना आप, और अपने चरणों में बनाए रखना, अपने चरणों पे लगाए रखना गुरुजी महाराज। संगत जी एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, कल मैं जब गई तो मैं घर में पूजा पाठ करके ही अपने मायके गई थी, और संगत जी मैं शिव पुराण नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि मुझे तुरंत निकलना था, इससे पहले घर के बाहर भीड़ जमा हो जो इन लोगों गेस्ट को इन्वाइट किया था। तो गुरुजी ने कल सत्संग के माध्यम से
मुझे बताया, शिव पुराण की महिमा बार बार बताई कि शिव पुराण जितना भी आप बिज़ी हो, अगर आपने शिव पुराण पढ़ना चालू किया है तो आप शिव पुराण पढ़ना रोको नहीं, मिस मत करो। चाहे वो 2 लाइन पढ़ के जाओ, पर जाओ, रेगुलर पढ़ रहे हो, एक दिन आपको मिस नहीं करना है। तो गुरुजी ने कल मुझे ये भी बताया, जिसका भी मैं बहुत बहुत कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे जो पाठ कराया ना, तो कल का पाठ भी मुझसे करा लिया और आज का पाठ भी मुझसे कराया। दोनों ही पाठ एक दिन में मुझसे करा लिए, जिसका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, बस यही है मेरा शुक्राना सत्संग, और मैं समाप्त करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।